Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Now the next chapter is geometric constructions. Construction of similar triangle. If two triangles are similar, then corresponding sides of similar triangles are in proportion and corresponding angles are congruent. We know it. Using this concept, a triangle similar to the given triangle can be constructed. Now let us see how to solve practice set 4.1. Now the first question is triangle ABC similar to triangle LMN. In triangle ABC, AB is equal to 5.5 cm, BC is equal to 6 cm, CA is equal to 4.5 cm. Now all sides of triangle ABC are given here. Construct triangle ABC and triangle LMN such that BC upon MN is equal to 5 upon 4. Look here. ट्रायंगल ABC के तीनों साइड्स यहाँ दिए गए हैं, तो हम आसानी से ट्रायंगल ABC कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं. अब ध्यान दीजिए, ये दोनों ट्रायंगल में कोई भी वर्टेक्स कॉमन नहीं है. ABC LMN, यहाँ हमें दो ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट करना होगा. दिया हुआ है दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, तो हम यहाँ इस प्रॉपर्टी का यूज़ करके ट्रायंगल LMN के तीनों साइड्स को फाइंड आउट कर लेते हैं. ट्रायंगल ABC is similar to triangle LMN. Therefore, AB upon LM is equal to BC upon MN is equal to AC upon LN. We know that corresponding sides of similar triangle. Now substituting the values, we get AB, it is given 5.5 upon LM, find out करना है, is equal to BC 6 upon MN is equal to AC 4.5 upon LN is equal to, now BC upon MN ratio is given here 5 upon 4, write down here. Now all ratios are equal here, therefore write down here first 5.5 upon LM, it is equal to 5 upon 4. First one, our aim is to find all sides. Now next 6 upon MN is equal to 5 upon 4, and third ratio is 4.5 upon LN is equal to 5 upon 4. Now solve it, cross multiply. Here we get 5 into LM is equal to 5.5 into 4. Now dividing by 5, we get LM is equal to 5.5 into 4 upon 5. Now solve it. 5 ones are 5 ones are, therefore LM is equal to 1.1 into 4. Now LM is equal to, we get here 4.4 centimeter. Now cross multiply here. 5 into MN is equal to 6 into 4. Now dividing by 5, we get MN is equal to 6 into 4 upon 5. Therefore MN is equal to 6 4s are 24 upon 5. Now solve it. MN is equal to 5 4s are 20, 5 8s are 40, 4.8 centimeter. Now next third one. Here again cross multiply. 5 into LN is equal to 4.5 into 4. Now dividing by 5, we get LN is equal to 4.5 into 4 upon 5. Now solve it. Cancel. 5 ones are
5 nines are. Now we get here 0.9 into 4. 9 fours are 36. Therefore answer is 3.6 centimeter. Now here we get the value of Lm is equal to 4.4 centimeter, Mn is equal to 4.8 centimeter and Ln is equal to 3.6 centimeters. For triangle LMN, the lengths of three sides are known. Therefore, triangle LMN can be constructed. Now first construct triangle ABC. Now in triangle ABC, AB is equal to 5.5 centimeter. It is given 5.5 centimeter. Here 5.5. Write down here 5.5 centimeter. It is the length of AB. Write down here AB. Now BC is given 6 centimeter. By using rounder, take the distance 6 centimeter. Look here, it is 6 centimeter. Now it is the value of BC. Therefore इसे B पे रखिए and construct an arc. एक arc बनाइए. Now next, value of CA is equal to 4.5 centimeter. Now look here, measurement is 4.5. Okay, 4.5. It is the value of CA. Now intersect the previous arc here from point A. Now we get here point, it is C. Now join AC as well as BC. Now the value of BC is 6 centimeter. Write down here, and the value of AC is 4.5 centimeter. Write down here. Now second triangle is triangle LMN. Now we know that the value of LM is 4.4. It is the value of LM, 4.4 centimeter. Now next, value of MN is 4.8 centimeter. MN 4.8. Look here, 4.8. It is distance of MN. तो M पर रखेंगे हम राउंडर को और एक आर्क कंस्ट्रक्ट करेंगे. उसी तरीके से Ln की वैल्यू 3.6. नाउ लुक हियर, 3.6. टेक द डिस्टेंस. इट इज द डिस्टेंस ऑफ Ln. L पे राउंडर रखेंगे और जो पहले हमने आर्क को कंस्ट्रक्ट किया था उसे हम इंटरसेक्ट करेंगे. नाउ हियर LMN, it is point N. Now join LN and MN. MN is 4.8 centimeter. Write down here. And next Ln is 3.6 centimeter. Write down here. Now इस तरीके से हमने ये दोनों ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट किया. ट्रायंगल ABC फर्स्ट एंड द सेकेंड वन इज ट्रायंगल LMN. नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज ट्रायंगल PQR सिमिलर टू ट्रायंगल LTR. इन ट्रायंगल PQ is equal to 4.2 centimeter, QR is equal to 5.4 centimeter, PR is equal to 4.8 centimeter. Construct triangle PQR and triangle LTR such that PQ upon LT is equal to 3 upon 4. Now look here carefully. Here both triangles are similar. Now vertex R is common
in both triangle and length of all sides triangle PQR are given here. Our aim is to construct triangle PQR as well as triangle LTR such that PQ upon LT is equal to 3/4. तो इसकी एक पहले हम रफ डायग्राम बना लेते हैं, ध्यान दीजिए। PQ 3 दिया गया है, LT है, इट मीन्स इस पे से हम यहाँ ये रिजल्ट निकालेंगे कि जो LT है ये ट्रायंगल मीन्स LTR, ये जो ट्रायंगल है ये बड़ा होगा, उसके अंदर ट्रायंगल आएगा PQR। तो हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर एक ट्रायंगल ले लेते हैं, रफ डायग्राम हम यहाँ बनाते हैं, R कॉमन है तो उसे हम यहाँ लिख लेंगे P, उसके बाद में QR, ठीक है। अब PQ 3 है और LT जो दिया गया है ये 4 है, यानी LT यहाँ बड़ा है, तो ये LTR ये ट्रायंगल बड़ा होगा। तो PQ के पैरेलल एक लाइन हम इस तरीके से लेंगे, दोनों लाइन पैरेलल हो गए, तो ये PQ पैरेलल है LT से, तो ये पॉइंट हो जाएगा L और ये पॉइंट हो जाएगा T। इस तरीके से हम इसे कंस्ट्रक्ट करेंगे, ध्यान दीजिए। पहले हम कंस्ट्रक्ट करेंगे ट्रायंगल PQR। तो PQR में R कॉमन है, इसलिए हम पहले RP दिया गया है यहाँ पर 4.8 सेंटीमीटर, ध्यान दीजिए। RP 4.8 सेंटीमीटर। PQ ये दिया गया है 4.2 सेंटीमीटर, ध्यान दीजिए यहाँ पर PQ डिस्टेंस लेंगे 4.2, ठीक है। ये वैल्यू है PQ की, तो P पर रखकर, राउंडर को रखकर हम एक कंस्ट्रक्ट करेंगे आर्क, एक आर्क को कंस्ट्रक्ट करेंगे। अब ध्यान दीजिए QR यहाँ दिया गया है 5.4, तो 5.4 ध्यान दीजिए, ठीक है। 5.4 ये वैल्यू है QR की, तो हम R पे राउंडर को रखकर इसको इंटरसेक्ट करेंगे। ये पॉइंट हमें मिल जाता है, इस पॉइंट को नाम दीजिए Q, PQR ज्वाइन कीजिए, हमें मिलेगा यहाँ पर PQ एज वेल एज RQ, ठीक है। अब इसके पैरेलल हमें एक साइड लेना है LT, ध्यान दीजिए यहाँ पे 3/4 ये वैल्यू दी गई है, तो बड़ा नंबर यहाँ पे है, ग्रेटर नंबर इज 4, तो यहाँ हम एक एक्यूट एंगल लेंगे R पर, ध्यान दीजिए, एक एक्यूट एंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे एंड टेक अ कन्वीनियंट डिस्टेंस, एक डिस्टेंस लेके हम एंड मेक 4 आर्क, 1 2 3 एंड 4। यहाँ जो भी बिगर नंबर होगा उतनी आर्क हम यहाँ पे बनाएंगे, ठीक है। इसे R1 लिख लीजिए, R2 R3 एंड R4, ध्यान दीजिए PQ ये 3 है, मीन्स ये जो 3 है इसे हम P को ज्वाइन कर लेंगे, इट इज़ गिवन PQ 3 है। यहाँ से हमें एक लाइन ड्रॉ करना है जो इस लाइन के पैरेलल होगी, तो पैरेलल लाइन ड्रॉ करने के लिए हमें ये एंगल के कॉन्ग्रेंट एक एंगल यहाँ बनाना होगा, ध्यान दीजिए। उसके लिए क्या प्रोसीजर करेंगे, हम एक डिस्टेंस पे हम इसे आर्क बनाएंगे, एक डिस्टेंस लेकर, ठीक है। सेम इसे कम ज़्यादा नहीं करना है, एक आर्क हम यहाँ बनाएंगे, बनाया आर्क। अब ये दोनों जो हमने पहला आर्क बनाया था
इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस हम लेंगे। अब ये दोनों इस पॉइंट से ये दोनों पॉइंट का हम डिस्टेंस लेंगे, ठीक है। हमारे पास में ये एक पॉइंट हमें मिला है, तो इस पॉइंट पे रखकर हम इसे इंटरसेक्ट करेंगे। ये एक पॉइंट हमें मिल जाता है। ये जो पॉइंट एल है ये आर पी रे पर आएगी, तो यहाँ पर हम इसे कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। उसी तरीके से इसे भी बना लेंगे हम। अब ये पॉइंट R4 और जो ये पॉइंट हमें मिला था, ये दोनों से पास होता हुआ एक लाइन खींचिए। ये दोनों पैरेलल हो गए, तो ये जो पॉइंट हमें मिलेगा ये कहलाएगा L। तो यहाँ इस एंगल के कॉन्ग्रेंट एक एंगल हमने यहाँ बनाया था। अब ध्यान दीजिए, पॉइंट T हमें यहाँ चाहिए जो PQ के पैरेलल होगा एक लाइन यहाँ पर, ठीक है। तो उसके लिए भी हमें वही प्रोसीजर करना होगा जो हमने यहाँ पे किया है। तो इस एंगल के कॉन्ग्रेंट हमें यहाँ पर भी एक एंगल बनाना होगा, तो करेंगे हम वही सेम प्रोसीजर। ध्यान दीजिए क्या करना है। एक डिस्टेंस लीजिए, एक आर्क इस तरीके से बनाइए कि ये दोनों को इंटरसेक्ट करें। इसे कम ज़्यादा नहीं करना है, एल पे रखिए और एक आर्क इस तरीके से बनाइए, ठीक है। ये दोनों पॉइंट का हमें डिस्टेंस लेना है, ठीक है। समझ में आया। अब ये जो हमें पॉइंट मिला था, इस पॉइंट पर हम राउंडर रखेंगे और जो आर्क हमने बनाया था उसको इंटरसेक्ट करेंगे। किया इंटरसेक्ट। अब हमें ये पॉइंट मिल जाता है यहाँ, और ये पॉइंट था। ये दोनों पॉइंट से पास होता हुआ एक खींचेंगे। ध्यान दीजिए, ये दोनों पॉइंट से पास होता हुआ एक लाइन खींचेंगे हम। तो इस लाइन को, ये जो पॉइंट हमें मिलेगा इसे नाम दे देंगे हम T। नाउ ट्रायंगल LTR इज required triangle similar to triangle PQR. Now next question is triangle RST similar to triangle XYZ. In triangle RST, RS is equal to 4.5 centimeter. Angle RST is equal to 40 degree. ST is equal to 5.7 centimeter. Construct triangle RST and triangle XYZ such that RS upon XY is equal to 3 upon 5. Now look here, both triangles are similar to each other. दोनों सिमिलर हैं। ये दोनों ट्रायंगल में कोई भी वर्टेक्स कॉमन नहीं है, यानी ये दोनों ट्रायंगल्स अलग अलग कंस्ट्रक्ट हो गए। अब ट्रायंगल RST में टू साइड्स की लेंथ दी गई है। फॉर ट्रायंगल RST द लेंथ्स ऑफ टू साइड्स आर गिवन एंड included angle is given here. Now write down the solution here. Triangle RST is similar to triangle XYZ. Therefore RS upon XY is equal to ST upon YZ is equal to RT upon XZ. Corresponding sides of similar triangles. Write down here. Corresponding sides of similar triangles. Now substituting the values, RS 4.5 upon XY is equal to ST 5.7 upon YZ is equal to RT upon XZ. तो RT upon XZ की हमें ज़रूरत नहीं है, इसे कैंसिल कर देते हैं। And RS upon XY it is given 3 upon 5. Therefore write down here 4.5 upon XY it is equal to 3 upon 5, and second ratio 5.7 upon YZ it is also equal to 3 upon 5. Now first solve it and find out the value of XY and YZ.
Now cross multiply here, we get 3 into xy is equal to 4.5 into 5. Now dividing by 3, we get xy is equal to 4.5 into 5 upon 3. Now cancel it. 3 ones are 3 5s are. Therefore xy is equal to 1.5 into 5. xy is equal to 15 5s are 75. Therefore 7.5 centimeter. Now cross multiply here. 3 into yz is equal to 5.7 into 5. Now dividing by 3, we get yz is equal to 5.7 into 5 upon 3. Now cancel it, solve it. 3 ones are 3 9s are. Therefore yz is equal to 1.9 into 5. Therefore yz is equal to 19 5s are 95. Now we get 9.5 centimeter. Now two sides of triangle xyz are find here, and we know that angle RST, it is given, is equal to angle XYZ. Both are 40 degree. Corresponding angles of similar triangles. Now for triangle XYZ, the length of two sides and included angles are known. Therefore triangle XYZ can be constructed. Now construct here both triangles. First construct angle RST. रफ डायग्राम हम यहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं. RST में RST ये दिया गया है, ये एंगल दिया गया है 40 डिग्री. तो RST इस तरीके से. उसी तरीके से XYZ, तो XYZ में भी ध्यान दीजिए एंगल हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया है. X फाइंड किया है, XYZ ये भी 40 है. इस तरीके से हम ये दोनों ट्रायंगल्स को कंस्ट्रक्ट कर लेंगे. तो फर्स्ट दिया गया है यहाँ पर. नाउ ST, the value of ST is 5.7. now construct here 5.7. लाइन ड्रॉ कीजिए. it is the value of ST 5.7. now angle is 40 degree at point S, vertex S. degree. Angle is 40 degree. Now the value of RS is 4.5. now take the measurement here. 4.5. इट इज़ द वैल्यू ऑफ RS. तो RS में से हमारे पास में पॉइंट S पर है, तो इस पर रख के हम एक ऐसा आर्क बनाएंगे. तो ये जो पॉइंट हमें मिलेगा ये हो जाएगा R. नाउ जॉइन RT को जॉइन कीजिए. नाउ द वैल्यू ऑफ RS इज 4.5 सेंटीमीटर. फर्स्ट ट्रायंगल. नाउ द सेकेंड ट्रायंगल हमें बनाना है XYZ में YZ दिया गया है. YZ की वैल्यू 9.5 सेंटीमीटर हमने फाइंड किया है. 9.5 सेंटीमीटर. लुक हियर. YZ 9.5 सेंटीमीटर.
एंगल y पे बनाना है 40 डिग्री. Now here it is 40. Angle is 40 degree. Now next xy is equal to 7.5. Take the measurement. ठीक है, 7.5 ये वैल्यू हमने हासिल किया है एक्स वाई के लिए. तो वाई पे रखकर हम इसे क्रॉस करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे. तो ये जो पॉइंट हमें मिलेगा ये कहलाएगा एक्स पॉइंट. नाउ जॉइन एक्स जेड. एक्स वाई की वैल्यू लिख लीजिए 7.5 सेंटीमीटर. नाउ ट्रायंगल एक्स वाई जेड इज द रिक्वायर्ड ट्रायंगल सिमिलर टू triangle RST. Now next question is triangle AMT similar to triangle AHE. In triangle AMT, AM is equal to 6.3 centimeter, angle TAM is equal to 50 degree and AT is equal to 5.6 centimeter. AM upon AH is equal to 7/5. Construct triangle AHE. Look here. Both triangles are similar here and vertex A is common in both triangle. Now in triangle AMT, the lengths of two sides and included angle are known. Therefore triangle AMT can be constructed. Now next one is for triangle AHE. AM is equal to 7. AM की वैल्यू दी गई है यहाँ पर 7 और AH दिया गया है 5. इट मीन्स यहाँ जो बिगर नंबर है वो है 7 जो है AM का. तो ट्रायंगल AMT ये बड़ा ट्रायंगल होगा और उसके अंदर ट्रायंगल होगा AHE. तो इसकी रफ फिगर इस तरीके से हो सकती है, ध्यान दीजिए. ये दोनों में वर्टेक्स A कॉमन है तो A हम यहाँ लिख लेते हैं और बड़ा ट्रायंगल हो जाएगा AMT, M और ये T. ठीक है, अब इसके अंदर दूसरा ट्रायंगल होगा AHE. तो A ये पॉइंट हो जाएगा H और यहाँ हमें पॉइंट मिलेगा E. तो ट्रायंगल AMT इट इज सिमिलर टू ट्रायंगल AHE. ये ट्रायंगल बड़ा क्यों लिया, समझ में आया ना, क्योंकि यहाँ पर AM 7 था तो ये बड़ा है और AH ये 5 है, ये छोटा है, इसलिए ये बड़ा ट्रायंगल होगा. अब ध्यान दीजिए, पहले हम ट्रायंगल AMT कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं. तो AMT के लिए AM 6.3 सेंटीमीटर मेजरमेंट कीजिए इसे. 6.3 AM 6.3 सेंटीमीटर. वर्टेक्स ए पे 50 का एंगल बन रहा है. यहाँ ये है वर्टेक्स ए, यहाँ हम बनाएंगे 50 का एंगल. अब ट्रायंगल AMT में ध्यान दीजिए, AT दिया गया है 5.6. तो मेजरमेंट कीजिए AT के लिए 5.6. नाउ हियर पॉइंट ए पे रखिए. इंटरसेक्ट कीजिए तो ये पॉइंट हमें मिल जाएगा T. जॉइन T एंड M. पहले हमने ट्रायंगल ATM को बना लिया है. अब इसके अंदर हमें ट्रायंगल बनाना है AHE. तो इसके लिए H पॉइंट हमें चाहिए E. तो जैसे हमने पहले किया था प्रोसीजर, पॉइंट A एंगल A दोनों में यहाँ पर कॉमन है. यहाँ पर एक एक्यूट एंगल हम बनाएंगे नीचे में. नॉट टेक अ डिस्टेंस, एक डिस्टेंस लीजिए and now look here 7.5 is given. now the bigger is 7, therefore यहाँ हमें 7
आर्क बनाना होगा। 1 2 3 4 5 6 and 7। A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7। ओके, अब ध्यान दीजिए AM की वैल्यू दी गई है 7, तो ये जो A7 है ये पॉइंट और M ये दोनों पॉइंट जोड़ दीजिए। नाउ जॉइन A7 एंड पॉइंट M। ओके, नाउ AH इज 5, तो हमें इस पॉइंट की ज़रूरत होगी A5। तो यहाँ इस ये जो एंगल है इसका कॉन्ग्रेंट एंगल हमें इस पॉइंट पे बनाना है। इसके लिए एक डिस्टेंस लेके हम और यहाँ इसको आर्क बनाएंगे। इसे कम ज़्यादा नहीं करते हुए इस पॉइंट पे रखेंगे और एक और आर्क हमें यहाँ बनाना है। ठीक है, अब ये दोनों के बीच का डिस्टेंस लेंगे। ध्यान दीजिए ये डिस्टेंस, ये जो पॉइंट हमें मिला है इस पॉइंट पर रखकर इसे हम क्रॉस करेंगे। यहाँ पे एक पॉइंट हमें मिल गया। नाउ जॉइन दिस 2 पॉइंट्स, ये दोनों पॉइंट्स को जॉइन कीजिए एंड ड्रॉ अ लाइन। ये एंगल और ये एंगल दोनों कॉन्ग्रेंट मिल गया। तो ये पॉइंट हमने यहाँ पे जो है H उसे लिख लीजिए, ये हासिल किया है हमने H। अब ध्यान दीजिए E पॉइंट के लिए TM के पैरेलल हमें एक लाइन बनाना होगा। तो उसके लिए ये जो एंगल है इस एंगल के कॉन्ग्रेंट यहाँ पे हमें एक एंगल बनाना होगा। सेम उसी प्रोसीजर से ध्यान दीजिए, एक डिस्टेंस लिया, एक आर्क बनाया हमने, उसी तरीके से यहाँ भी एक आर्क बनाना है। ये दोनों के बीच का डिस्टेंस ये लेकर इस पॉइंट पे रख के इसे इंटरसेक्ट कीजिए। ये जो पॉइंट हमें मिलेगा इस पॉइंट से और इस पॉइंट से जॉइन होता हुआ एक लाइन खींचिए, ये हो जाएगा E। तो ये एंगल और ये एंगल दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रेंट हमने बनाया है। ट्रायंगल AHE is the required triangle similar to triangle AMT। अल्लाह हाफिज़।